Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and this is your next lecture in the series of Unit 7, 8, and 9. Now, our 7 unit is already finished with all the traditional theorists in which we studied classical writers, we studied Dryden, we studied romantic writers, and we ended with Matthew Arnold's study of poetry. Now we are heading towards 8th unit and 8th and ninth combined. Though, as I earlier said with the starting of these lectures, that 8th unit is particularly for cultural studies, for which I'll be giving you videos and then their separate PDFs side by side. I had already recorded those videos and were uploaded on YouTube. But since we have started with this new setup, we have unlisted those videos from the YouTube, and we'll be providing our valuable students now, those who have paid us for that, and separate PDFs will be given to them. Now let us start with this new session, unit number 9, which is literary criticism. And there is a whole history of literary criticism in 20th century. Uh, Traditionally, suppose I was about to make videos on sequence of the way literary criticism came in the 20th century, then I should have started with the psychoanalysis. But new criticism I chose first because I have seen many questions come on new criticism. So let us move and let me share screen and teach you the न्यू क्रिटिसिज्म. यूनिट नंबर 8 गलती से लिखा हुआ है, इसमें यूनिट नंबर 9 होना चाहिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इसको न्यू क्रिटिसिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि उस वक्त किसी भी टेक्स्ट को, उसमें भी टेक्स्ट के अंदर दे यूज टू कंसिडर कि नॉवल और स्टोरी को वो या ड्रामा को टेक्स्ट नहीं मानते थे. वो टेक्स्ट का मतलब लेते थे पोइट्री. तो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में 1940 के आसपास, 35 भी कह सकते हो, उससे पहले बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म चलता था. बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म या इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं आप. इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, के बीइंग a readers what I feel about something. Okay, but then that was not objectivity. If you're reading something and what you can comment on, then these new critics, those we'll be studying shortly, they said that whatever is present in the text itself. So go back to text. Okay, this is the main tenet of new criticism. New criticism is an approach to literature which was developed by a group of American critics who taught at southern universities during the years following the First World War. तो वो जब टीच कर रहे थे उन दिनों उनके ये कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डेवलप किए. The new critics wanted to avoid impressionistic criticism, जो कि मैंने आपको अभी बताया, which risked being shallow and arbitrary. Shallow and arbitrary क्यों? Because एक पर्टिकुलर रीडर का कोई भी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकता है, तो वो यही कहेगा कि भाई मेरे को ये बात समझ में आई है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का ये मतलब है. ठीक है, या पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड से आया, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आया, पर्टिकुलर जेंडर बैकग्राउंड से है वो, तो अकॉर्डिंगली वो कलर्ड हो जाएगा वो जो क्रिटिसिज्म है. तो इसको उन्होंने अवॉइड किया. दे अटेम्प्टेड टू सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ लिटरेचर टू डेवलप एन अप्रोच व्हिच वाज सेंटर्ड ऑन द रिगरस स्टडी ऑफ टेक्स्ट इटसेल्फ. और अगर आपको मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक किसको कह सकते हैं, सो दिस वाज कंसीडर्ड साइंटिफिक. ठीक है. अच्छा, they were given their name by John Crow Ransom, who describes the new American formalist in the new criticism. अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नेट में 3 बार आया हुआ है. जॉन क्रो रैंसम जो अमेरिकन फॉर्मलिस्ट थे. अभी मैं आपको फॉर्मलिज्म भी समझा देता हूँ. देखिए, फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक शेप किसी चीज की. तो ऐसे क्रिटिक्स जिनके लिए फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटेंट कम इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, और उसी से मिलता जुलता ये क्रिटिसिज्म है जिसको जॉन क्रो रैंसम ने बुक लिखी, द न्यू क्रिटिसिज्म. ठीक है. अब न्यू क्रिटिकल फॉर्मलिज्म के नाम से भी मशहूर हुआ ये. न्यू क्रिटिसिज्म इज डिस्टिंक्टली फॉर्मलिस्ट इन कैरेक्टर. अभी मैंने आपको समझाया कि फॉर्म क्या है. ओके, मेरे मुझसे भी कंटेंट भी निकला था, तो आप ये भी कह सकते हो कि कंटेंट और फॉर्म दोनों को मिला करके वो
क्रिटिसिज्म करते थे. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन द कंटेंट एज वेल एज इन द फॉर्म. वो राइटर कौन है, राइटर का बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इससे वो दूर रहते थे. ओके. एंड वहां पे एक नया टर्म निकल के आया जिसको बोलते हैं क्लोज रीडिंग. ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है कि क्लोज रीडिंग जो है, इसका मतलब है टेक्स्ट को ही सब कुछ मानो और टेक्स्ट का हाई लेवल में अंडरस्टैंडिंग करो. ओके. और उसमें ये कोशिश करो कि उसकी रिदम क्या है, मीटर क्या है, थीम क्या है, कैसी इमेजरी को क्रिएट किया है, किस तरह की वोकैबुलरी है, किस तरह के मेटाफर्स हैं. ठीक है. इस तरह की जो स्टडी है उसको करने को उन्होंने क्लोज रीडिंग कहा. ठीक है. उसकी एस्थेटिक क्वालिटीज को उन्होंने समझने की कोशिश की. अब एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ दे अप्रोच्ड पोएम इन दिस मैनर एंड हु वाज देयर इंस्पिरेशन. तो एस.टी. कॉलरिज जो थे, मतलब उन्होंने सबसे पहले ऐसे कहा था कि जो पोएम है वो एक ऑर्गेनिक होल है. और न्यू क्रिटिक्स ने उनकी इस बात को सिस्टमेटिकली लिया और पोएम को एक ऑर्गेनिक होल मान करके साइंटिफिक स्टडी से उसको समझने की कोशिश की. तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है. तो 4 तरह के क्वेश्चंस पढ़ लिए. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, द वेल रॉट अर्न. पहली बात तो कि ये क्लियंथ ब्रूक की बुक है और आपको मालूम होना चाहिए कि जॉन डन की जो पोएम थी कैनोनाइजेशन, वहां से ये टर्म लिया गया है. दे कैन आल्सो दिस क्वेश्चन आल्सो. ठीक है. फिर है कि इन्होंने जो कैनोनिकल पोएम्स थी, कैनोनिकल का मतलब क्या होता है, ये एक लिटरेरी टर्म भी मानी जाती है. एनीथिंग विच इज इन द सिलेबस विच इज टॉट इन द यूनिवर्सिटीज, उसको बोलते हैं कैनोनिकल. तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाता था, वहां की उन्होंने मेजर पोइट्री का एनालिसिस किया है. ठीक है. जिसमें जॉन डन मेन है, क्योंकि टाइटल भी वहीं से लिया. 1947 में बुक पब्लिश हुई. ठीक है. थ्रू द यूज ऑफ आयरॉनिक कंट्रास्ट एंड एम्बिवलेंस, ये 2 टर्म्स हैं. उन्होंने अपनी, मैं आपको कंट्रास्ट और एम्बिवलेंस या इंटरनल पैराडॉक्स का एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको ये वाली लाइन समझ में आएगी कि वेल रॉट अर्न मींस, वेल रॉट अर्न इज अ मेटाफर फॉर पोएम. दैट पोएम इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट well made entity, number 1. Number 2, but now the poem itself has so many different paradoxes and ironical things in itself. जिन स्टूडेंट ने जॉर्डन की सनराइजिंग पोएम पढ़ी है, तो आप उसमें देखिएगा कि अगर आप पूरी पोएम को पढ़ोगे, और भी उसकी बहुत सारी पोएम्स हैं, तो आप देखोगे कि वो शुरू में सूरज को कह रहा है कि तू यहाँ से चला जा. और फिर पोएम को एस्थेटिकली बहुत सुंदर सुंदर मेटाफर्स यूज करते हुए, मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज करते हुए, लास्ट में वो ये कह बैठता है कि तू बूढ़ा हो गया है, तू इस चारदीवारी में ही चमक हमारे आसपास, तुझे बाहर जाने की जरूरत क्या है. तो अपने आप में आपने नोटिस किया एक एक पैराडॉक्स है कविता में, कि वो जिसको जाने के लिए कह रहा है, अब उसी को बाद में रहने के लिए कह रहा है. मतलब कि एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम को देखें तो हमें कोई कमी नजर नहीं आएगी. बट जैसे हम देखेंगे कि देयर इज अ कंट्रास्ट, सम एम्बिवेलेंस. एम्बिवेलेंस का मतलब होता है एक ही राइटर दो दो बातें कर रहा है. ठीक है. ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी नेट में आ चुका है और घुमा फिरा के ये फिर पूछेंगे आपसे. ठीक है. तो आप ये याद रखिए, लेक्चर में मैंने कौन कौन से राइटर्स के नाम लिए. Under close new critical analysis, the poem is shown to be hierarchical structure. का मतलब क्या होता है कि पोएम में अपने आप में मीनिंग निकालना है तो कुछ हायरार्की हो सकती है उसके अंदर, कुछ छोटी फिर बड़ी ऐसी चीजें आप उसमें ढूंढ सकते हो. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अंडरस्टैंड द पोएम. क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म का मेजर पर्पस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड समथिंग. फिर द हियरसे ऑफ पैराफ्रेज. अब ये टर्म बहुत फेमस है, ऑल्दो अब इसको समझाता हूं. Although the new critics do not assert that meaning of a poem is inconsequential, they reject approaches which view the poem as an attempt at representing the real world. They justify the avoidance of discussion of a poem's content through the doctrine of the hearsay of paraphrase. अब ये hearsay of paraphrase जो है, which is also described in the well-wrought on क्लियंथ बुक की जो बुक है, इसमें मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ. Hearsay का मतलब क्या होता है? Hearsay का मतलब होता है anything which is अगेंस्ट रिलीजन. ठीक है. और पैराफ्रेज का मतलब होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि पोएम में ये कहा गया है और मैंने इस पोएम को पढ़ लिया एंड दिस इज द मीनिंग, दिस इज द पैराफ्रेज, दिस इज द समरी ऑफ समथिंग. बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक इंटरनल टेंशंस, पैराडॉक्सेस, ambiguities, they keep running and exactly it is undecidable what the poem wants to convey. सारा का सारा पोएम का कंटेंट आपको मीनिंग दे ऐसा जरूरी नहीं है. ये होता है hearsay of paraphrase का मीनिंग. Cleanth Brook asserts that the meaning of a poem is complex and precise, and that any attempt to paraphrase it inevitably distorts or reduces it. पोएम का मतलब
उसकी एस्थेटिक्स, उसकी सौंदर्य, उसका मजा, उसकी ब्यूटी इसी चीज में है कि आप उन पैराडॉक्सेस को समझें। चलिए थोड़ा लेक्चर एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूं आपके लिए। मुझे बताइए कि लाइफ अगर सीधी सादी हो, एक पर्सनालिटी अगर बहुत सीधी सादी हो, तो इंसिपिड और बेकार लगती है। इसका मतलब है कि मजा ही जिंदगी में किस बात का है, जब हम इसमें तरह तरह के पैराडॉक्सेस देखते हैं। नेचर वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड है, पैचेस लिए हुए हैं, बहुत सारी कंट्रास्टेड थिंग्स आर देयर इन नेचर। सो एक पोयम भी उसी तरह की चीज है, आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अदरवाइज आप उसको खो बैठोगे उसकी ब्यूटी को। अब आते हैं उसमें दो टर्म्स की डिस्कशन कर लेते हैं, इंटेंशनल एंड अफेक्टिव फैलेसीज। देखिए एक बुक थी द वर्बल आइकन 1954 में, विलियम विम्सेट एंड मुनरो बियर्ड्सले। तो इसमें विलियम विम्सेट का नाम मेन आता है वर्बल आइकन लिखने में। वर्बल आइकन का मतलब समझ रहे हो ना, कि पोएम कुछ नहीं है, एक वर्बल एक साइन है। वहां पे उन्होंने दो फैलेसीज का डिस्कशन किया है। फैलेसी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज एन एरर। अब एक होती है इंटेंशनल फैलेसी, which is the mistake of attempting to understand the author's intentions when interpreting a literary work. ऑथर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हो, इसका मतलब है आपने उसके इंटेंशन को समझने में गलती कर दी। Such an approach is fallacious because the meaning of a work should be contained solely within the work. जिसके लिए मैंने आपको अभी ये उदाहरण दिए कि आप किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में ला करके नहीं समझा सकते। आप ऑथर के लिए वो पोएम अपने आप में एक जिंदा चीज है, एक लाइवली है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे को वायोलेट कर रही है, जैसे ह्यूमन बींग्स में करती है। और उस चीज का पैराफ्रेज करने का मतलब है उस चीज का इंटेंशन को नहीं समझना। अफेक्टिव फैलेसी का डिस्कशन करते हैं, इज द मिस्टेक ऑफ इक्वेटिंग अ वर्क विद इट्स इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन एन ऑडियंस। The new critics believe that a text should not have to be understood relative to the responses to its readers. Its merit or its meaning must be inherent. आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाला है, इससे आप कविता को जज नहीं कर सकते। The new criticism, distinguished in itself and distinctive in its relation to past and present in literature, brought out several surveys of the field that opened it to other than readers of purely literary reviews. इस लाइन का मतलब है कि बेसिक बात वही है कि अफेक्टिव फैलेसी, आप हो सकते हैं पहले से ही इमोशनल टाइप के इंसान हो, आपने कुछ चीज पढ़ी और आप रोने लगे, इसका मतलब है कि ये एक फैलेसी है। हो सकता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसमें ऐसा कुछ इंटेंशन ही नहीं हो, ठीक है। तो रीडर के ऊपर जो रिस्पॉन्सेज है उससे हम पोएम को जज नहीं कर सकते, वो एक सब्जेक्टिव जजमेंट हो जाएगा। जबकि न्यू क्रिटिसिज्म एक ऑब्जेक्टिव चीज है, वो कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली क्लोज रीडिंग से उसके अंदर क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्रिटिक्स एंड एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा F.R. लेविस की जो बुक है, उसका नाम है द ग्रेट ट्रेडिशन, जिसमें उन्होंने जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरैड, इनको स्टडी किया है। ये पहली बुक है न्यू क्रिटिसिज्म में जिसको हम कह सकते हैं कि ये नॉवल पे बेस्ड है। मोस्टली जो बुक्स हैं जैसे द वर्बल आइकन है, वेल रॉट अर्न है, वो पोइट्री के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कुछ राइटर्स के नाम दिए हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, उनकी कुछ बुक्स हैं। फिर कुछ एक अच्छा सा डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कुछ बोल्ड कर रखा है, द न्यू क्रिटिक्स प्रिविलेज्ड पोइट्री ओवर द फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन बिकॉज दे सॉ द पोएम एज द प्योरेस्ट एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ द लिटरेरी वैल्यूज which they upheld. So this is what I earlier said, that they considered that poetry is most important, okay, and they applied close reading and structural analysis of text, okay, जो ऑलरेडी उस जमाने में बाकी के जो लिटरेरी जॉनरेज हैं, फॉर्म्स हैं, उन पे अप्लाई किया जा रहा था, ठीक है। अब आते हैं कि उसमें क्या पॉसिबल रिस्पॉन्सेज रहे। एक बात का ध्यान रखना है कि न्यू क्रिटिसिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स क्या रहा था, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। New criticism is such a rigid and structured program for the study of literature. It is open to criticism on many fronts. First, in its insistence on excluding external evidences, new criticism disqualifies many possible fruitful perspectives for understanding text, such as historicism, psychoanalysis, and Marxism. क्योंकि देखो ये जो तीन चीजें हैं, हिस्टोरिसिज्म, साइकोएनालिसिस एंड मार्क्सिज्म, ये एक बाहर की ऑथर के ऊपर की अप्रोच है। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जैसे हिस्टोरिसिज्म है,
अब हिस्टोरिसिज्म का मतलब है हिस्ट्री का क्या इफेक्ट पड़ा होगा उस टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। साइकोएनालिसिस का मतलब है जिसने लिखा है उसकी क्या साइकोलॉजी है, ठीक है। और मार्क्सिज्म का मतलब है वो कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, रिच वर्ग से, पुअर वर्ग से, यानी कि वो बूर्जुआ है कि प्रोलेटरिएट है, उसके पास सारे सोर्सेज थे, नहीं थे, तो वो किस टाइप से किस चीज को नेगेटिव दिखाएगा, किस चीज को पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। ये चीजें नहीं कर पाए न्यू क्रिटिक्स। सिंस न्यू क्रिटिसिज्म एम्स एट फाइंडिंग वन करेक्ट रीडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट है, देखो इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है करेक्ट को, जिंदगी में किसी चीज का एक मीनिंग हो ही नहीं सकता, और क्योंकि सबसे पुराना क्रिटिसिज्म है 20th सेंचुरी का, तो आज हम इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इग्नोर्स द एम्बिग्यूटी ऑफ लैंग्वेज। हमेशा याद रखिएगा लैंग्वेज और इंसान एम्बिग्यूस है, जितना एम्बिग्यूस वो होता है उतना ही वो लाइवली होता है, जितना वो आयरॉनिकल है, जितना वो पैराडॉक्सिकल है, उतना ही वो इंटेलिजेंट माना जाएगा, उतना ही वो जमाने में चले गए उस चीज के कि नहीं तो एथिक्स पर हम लोग आइडियोलॉजीज पर मतलब काम करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे 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 क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ रही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑल्दो द न्यू क्रिटिक्स वर नेवर अ फॉर्मल ग्रुप, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मल ग्रुप कभी नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन उनकी इंस्पिरेशन में जैसे जॉन क्रो रैनसम का नाम है, क्लियंट ब्रूक का नाम है, रॉबर्ट पेन वॉरेन का नाम है, भी ऑप्शंस में आपको कभी दिखेंगे, मान लीजिए वो पूछ ले कि इनमें से कौन सा न्यू क्रिटिक है, तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपका, ठीक है। एक ऐसे जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इन अनदर ऐसे द अफेक्टिव फैलेसी व्हिच सर्व्ड एज अ काइंड ऑफ सिस्टर ऐसे टू द इंटेंशनल फैलेसी, इन दोनों को एक साथ स्टडी किया जाता है। ऑल्सो डिस्काउंटेड द रीडर्स पर्सनल और इमोशनल रिएक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, जो बाद में जाकर के रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में काफी ज्यादा समझा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टैनले फिश का नाम दिया है, इसमें आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। स्टैनले फिश ने विंसेंट एंड बियर्ड्सले को इस इफेक्टिव और इंटेंशनल फैलेसी के लिए आड़े हाथों लिया था। उन्होंने एक ऐसे लिखा था, लिटरेचर इन द रीडर, तो ये आपको पूछ सकते हैं। और स्टैनले फिश कौन है? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। फिर आता है क्लिंट ब्रूक का एक ऐसे, द न्यू क्रिटिसिज्म 1979 में छपा। देखिए क्रिटिसिज्म तो 40s में, 35-40s में आया, लेकिन रिस्पॉन्सेज 40 साल तक चलते रहते हैं, ठीक है। Argued that the new criticism was not diametrically opposite to the general principles of new response theory or reader response theory, sorry, and that the two could complement one another. For instance, he stated, मैं वो पूरा quotation पढ़ रहा हूँ आपके लिए, if some of the new critics have preferred to stress the writing rather than the writer, so have they given less stress to the reader's response to the work. Yet no one in his right mind could forget the reader. Is essential for realizing any poem or novel. Reader response is certainly worth studying. तो क्लियंट ब्रूक जो उसी कैटेगरी के राइटर हैं, उन्होंने अपने न्यू क्रिटिसिज्म में उठा करके और एक बात कह दी कि क्योंकि वो रीडर की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो केवल पोएम की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के खिलाफ है। ओके, तो ये रैशनली और लॉजिकली कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि हाँ, जब उन्होंने रीडर की बात ही नहीं की, जैसे फिलिप सिडनी डिफेंस ऑफ पोइजी में क्या कहते हैं मालूम है, कि पोएट झूठ बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी ये कहा ही नहीं कि जो कह रहा हूं मैं सच है। जब उसने ये नहीं कहा मैं सच कह रहा हूं, तो फिर वो झूठ कैसे बोल रहा है? और स्टीफन गॉसन ने उस पर आरोप लगाया था कि पोएट्स झूठ बोलता है, ठीक है। तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है सर्टेनली वर्थ स्टडिंग। However, Brooke tempers his praise for the reader response theory by noticing its limitations, pointing out that to put meaning and valuation of a literary work at the mercy of any and every individual would reduce the study of literature to reader psychology and to the history of taste. ये आपको मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ाऊंगा। मुझे भी मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में, कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो होती है, अब देखो ना, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में हंसी की बात क्या है, उसके बाद में फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ जब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आई थी, कि उन्होंने रीडर रिस्पॉन्स को क्या मतलब है, जैसे हम डेमोक्रेसी में जीने लगते हैं ना, तो फिर जैसे आप ट्विटर पर करिए या कुछ करिए, फेसबुक पे कुछ लिखिए, every Tom, Dick, and Harry will come and start writing their comment, despite their being, enlightened or not being enlightened. कोई कुछ भी कहने को तैयार है, तो फिर क्या उसको लिटरेचर मान लिया जाएगा? उसके रिस्पॉन्स को एक स्टैंडर्ड का रिस्पॉन्स मान लिया जाएगा? ये बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इसका मतलब है न्यू क्रिटिसिज्म को उन्होंने एक सही अप्रोच माना। Another objection against new criticism is that it misguidedly tries to turn literary criticism into an objective science. अब कई लोग कहते हैं कि ये साइंस नहीं होती है, लिटरेचर लिटरेचर होता है, साइंस साइंस होती है, साइंस की एक अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये साइंस होती नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी होती नहीं है लिटरेचर में। फिर मैंने कुछ बुक्स के नाम दिए, आप ध्यान से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में
विलियम एम्पसन की बुक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी बार बार पूछा जाता है। टीएस एलियट का ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स बार बार पूछा जाता है। क्रिटिसिज्म इंक पे क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, ये रैंसम का लिखा हुआ ऐसे, एंड ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिक, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है आपको। फिर एलन टेट का एक ऐसे बहुत फेमस है, मिस एमिली एंड द बिब्लियोग्राफर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। विमसेट बियर्ड्स लेके ऐसे इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी आ सकता है। ब्रुक की वेल रॉट अर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका सबटाइटल लिख लीजिए, स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। अब ये क्योंकि हमने अब तक डिस्कशन करते वक्त नोटिस नहीं किया, अब ये आप पढ़ सकते हो। वेरन का ऐसे है प्योर एंड इम्प्योर पोइट्री, ठीक है। वेलिक एंड वेरन की बुक है थ्योरी ऑफ लिटरेचर। ऐसे करके ये वो इंपॉर्टेंट वर्क्स है बच्चों जिनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू सो मच।